हम एक साल का बाइबल रीडिंग पढ़ेंगे। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 16th चैप्टर 17 वर्स से 33 वर्स, फर्स्ट क्रॉनिकल 7 चैप्टर 8 चैप्टर। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 वचन से 33 वचन तक, और पहले इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय 8 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जॉन 16th चैप्टर 17 वर्स से 33 वर्स तक पढ़ेंगे। Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me again, and again, a little while, and ye shall see me, and because I go to the Father. They said therefore, What is this that he saith, a little while? We cannot tell what he saith. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me? Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come, but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. These things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall shew you plainly of the Father. At that day ye shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you, for the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world, and go to the Father. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Now are we sure that thou knowest all things, and needst not that any man should ask thee? By this we believe that thou comest forth from God. Jesus answered them, Do ye now believe? Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़ेंगे 33 वचन तक। तब उसके चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ।
तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। संसार पर विजय। 25 वचन से आगे, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 1 Chronicles chapter 7 Sons of Issachar, of Benjamin, of Naphtali, Manasseh, of Ephraim, of Asher. First verse say, now the sons of Issachar were Tola and Puah, Jashub and Shimron, 4. And the sons of Tola, Ujji and Rephaiah and Jeriel and Jahamai and Jibsam and Shemuel, heads of their father's house, to wit of Tola. They were valiant men of might in their generations, whose number was in the days of David 22,600. And the sons of Uji, Izrahiah, the sons of Izrahiah, Michael and Obadiah and Joel, Ishiah, 5, all of them chief men, and with them by their generations after the house of their fathers were bands of soldiers for war, 36,000 men, for they had many wives and sons. And their brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by their genealogies 77,000. The sons of Benjamin, Bela and Becher, and Jediael, 3. And the sons of Bela, Ezbon and Uji and Uziel and Jerimoth and Iri, 5 heads of the house of their fathers, mighty men of valor, and were reckoned by their genealogies 22,034. And the sons of Becher, Zemira and Joash and
Eliezer and Elioenai, and Omri and Jerimoth and Abiah and Anathoth and Alameth. All these are the sons of Becher, and the number of them after their genealogy by their generations, heads of the house of their fathers, mighty men of valor, was 20,200. The sons also of Jediael, Bilhan, and the sons of Bilhan, Jeosh, and Benjamin, and Ehud, and Chenana, and Zetan, and Tarshish, and Ahishahir. All these the sons of Jedial, by the heads of their fathers, mighty men of valor, were 17,200 soldiers, fit to go out for war and battle. Shuppim also and Huppim, the children of Ur, the children of Ir, and Hushim, the sons of Aher. The sons of Naphtali, Jahaziel, and Guni, and Jezer, and Shalom, the sons of Bilhah, the sons of Manasseh, Ashriel, whom she bare, but his concubine the Aramitess bare Machir, the father of Gilead. And Machir took to wife the sister of Hoppim and Shuppim, whose sister's name was Makkah, and the name of the second was Zelophehad. And Zelophehad had daughters, and Makkah, the wife of Machir, bare a son, and she called his name Peresh, and the name of his brother was Sheresh, and his sons were Ulam and Rakim. And the sons of Ulam, Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh. And his sister Hamoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah. And the sons of Shemida were Ahian, and Shechem, and Lehi, and Aniam. And the sons of Ephraim, Shutela, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son, and Zabad his son, and Shutela his son, and Ezer, and Eliad, whom the men of Gath that were born in that land slew, because they came down to take away their cattle. And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him. And when he went in to his wife, she conceived and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house. And his daughter was Sherah, who built Beth Horon, the nether and the upper, and Uzzain Sherah, and Repha was his son, also Resheph, and Tela his son, and Tahan his son, Ladan his son, Amihud his son, Elishama his son, Non his son, Jehoshua his son. And their possessions and habitations were Bethel and the towns thereof, and eastward Naran, and westward Gezer, and the towns thereof, Shechem also, and the towns thereof unto Gaza, and the towns thereof. And by the borders of the children of Manasseh, Bashan and her towns, Tanakh and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In this dwelt the children of Joseph the son of Israel. The sons of Asher, Imnah and Isua, and Ishuai, and Beriah and Sarah their sister. And the sons of Beriah, Heber and Malkiel, who is the father of Birzavith. And Heber begat Japhleth, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister. And the sons of Japhleth, Pasak, and Bimhal, and Ashwath. These are the children of Japhleth. And the sons of Shamer, Ahi, and Rohga, Jehubbah, and Aram. And the sons of his brother Helem, Zophah, and Imnah, and Shelesh, and Amal. The sons of Zophah,
Suaha, and Harnefer, and Shuel, and Beri, and Imra, Bezer, and Hod, and Shama, and Shilshah, and Itran, and Beera. And the sons of Jether, Japhunneh, and Pispah, and Ara, and the sons of Ola, Arah, and Haniel, and Rizia. All these were the children of Asher, heads of their father's house, choice and mighty men of valor, chief of the princes, and the number throughout the genealogy of them that were apt to the war and to battle was 26,000 men. Chapter 8. Sons of chief men of Benjamin, stock of Saul and Jonathan. First verse say, Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Ahra the third, Noah the fourth, and Rapha the fifth. And the sons of Bela were Adar, and Gera, and Abihud, and Abishua, and Naaman, and Ahoa, and Gera, and Shephuphan, and Huram. And these are the sons of Ehud. These are the heads of the fathers of the inhabitants of the Geba. And they removed them to Manahath, and Naaman, and Ahia, and Gera. He removed them and begat Uzzah, and Ahihud, and Shaharaim begat children in the country of Moab. After he had sent them away, Hushim and Bara were his wives, and he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibiah, and Mesha, and Malcolm, and Jeuz, and Shakia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers. And of Hushim he begat Abitub, and Ilpal, and the sons of Ilpal, Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono and Lod with the towns thereof. Berea also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath, and Ahio, Shashak, and Jeremoth, and Zebadiah, and Arad, and Adir, and Mikhael, and Ispa, and Joha, the sons of Berea, and Jebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber, Ishmerai also, Jezliah, and Jobab, the sons of Ilpal, and Jakim, and Jikri, and Jabdi, and Elianai, and Ziltai, and Eliai, and Adaiah, and Beriah, and Shimrath, the sons of Shimhi, and Ishpan, and Heber, and Eliel, and Abdon, and Jikri, and Hanam, and Hananiah, and Elam, and Antotijah, and Ephedeiah, and Pinuel, the sons of Shashak, and Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah, and Jeresiah, and Eliah, and Jikri, the sons of Jeroham. These were the heads of the fathers by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem. And at Gibeon dwelt the father of Gibeon, whose wife's name was Machal. And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab, and Gedor, and Ahio, and Zakir, and Mikloth begat Shimea. And this also dwelt with their brethren in Jerusalem over against them. And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Ishbaal. And the son of Jonathan was Miribal, and Miribal begat Micah. And the sons of Micah were Pithon, and Melech, and Tariah, and Ahaj. And Ahaj begat Jehoiada, and Jehoiada begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri. And Zimri begat Moza, and Moza begat Binia. Rapha was his son, Eliasa his son, Azel his son, and Azel had 6 sons.
whose names are these: Azrikam, Bokhero, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azil, and the sons of Eshek his brother were Ulam his firstborn, Jehush the second, and Elipheleth the third. And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons and sons, 150. All these are the sons of Benjamin. पहला इतिहास 7 अध्याय 8 अध्याय हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले 7 अध्याय से शुरू करेंगे। इस्साकार की वंशावली पहले वचन से। इस्साकार के पुत्र तोला, पुआ, याशुब और शिमरोन 4 थे। तोला के पुत्र उज्जी, रपाया, यरियल, यहमै, यबसाम और शमूएल ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात तोला के संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। उज्जी का पुत्र यजरया और यजराहिया के पुत्र मिकायल, ओबद्या, योएल और यशैया 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे और उनके साथ उनको वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में से थे वे 87,000 बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। बिन्यामीन और दान की वंशावलियाँ 6 वचन से आगे। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदिएल ये 3 थे। बेला के पुत्र एजबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और ईरी ये 5 थे। ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। बेकेर के पुत्र जमीरा, योवाश, यलेयेजर, यन्नै, ओमरी, यरेमोत, अबिया, अनातोत और आलेमेत ये सब बेकेर के पुत्र थे। ये जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। यदीएल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यूश, बिन्यामीन, अहूद, कनान, जेतान, तरशीश और अहीशहर थे। ये सब जो यदीएल के संतान और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य 17,200 पुरुष थे। ईर के पुत्र शुप्पीम और हुप्पीम और अहेर के पुत्र हुशी थे। नप्ताली की वंशावली 13 वचन से आगे। नप्ताली के पुत्र एहीसेयल, गुनी, यसेर और शल्लुम थे। ये बिल्हा के पोते थे। मनश्शे की वंशावली 14 वचन से आगे। मनश्शे के पुत्र अस्रियेल जो उसकी अरामी रखेल से उत्पन्न हुआ था, और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। माकीर जिसकी बहन का नाम माका था, उसने हुप्पीम और शुप्पीम के लिए स्त्रियां ब्याह ली, और दूसरे का नाम सलोफाद था, और सलोफाद के बेटियां हुई। फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम पेरेश रखा, और उसके भाई का नाम शेरेश था, और इसके पुत्र उलाम और राकेम थे। उलाम का पुत्र बदान ये गिलाद के संतान थे, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। फिर उसकी बहन हम्मोलेकेत ने इशहोद, एबीएजेर और महला को जन्म दिया। शमीदा के पुत्र आहियान, शेकेम, लिखी और अनियाम थे। एप्रेम की वंशावली 20 वचन से आगे। एप्रेम के पुत्र शुतेलह का बेरेद, बेरेद का तहेत, तहेत का एलादा, एलादा का तहेत, तहेत का जाबाद, और जाबाद का पुत्र शुतेलह हुआ। और शुतेलह के पुत्र येजेर और एलाद थे, जिन्हें गत के मनुष्यों ने जो उस देश में उत्पन्न हुए थे इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे। अतः उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा, और उसके भाई उसे शांति देने को आए। तब वह अपनी पत्नी के पास गया, और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने के विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री शेरा थी, जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरोन नामक नगरों की और उज्जैन शेरा के दृढ़
उजेंशेरा को दृढ़ कराया। उसका पुत्र रेपा था और रेशेप भी, और उसका पुत्र तेलह, और तेलह का तहेन, तहेन का लादान, लादान का अमीहूद, अमीहूद का एलीशामा, एलीशामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था। उनकी निज भूमि और बस्तियां गांवों समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांवों समेत गेजेर, फिर गांवों समेत शकेम और गांवों समेत अज्जा थी। और मनश्शेइयों की सीमा के पास अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, मगिद्दो और दोर, इनमें इस्राएल के पुत्र यूसुफ की संतान के लोग रहते थे। आशेर की वंशावली 30 वचन से आगे। आशेर के पुत्र यमना, यशवा, यशवी, बरिया और उनकी बहन सेरह हुई। बरिया के पुत्र हेबेर और मल्कीएल, और यह बिरजोत का पिता हुआ। हेबेर ने यपलेत, शोमेर, होताम और उनकी बहन शुआ को जन्म दिया। यपलेत के पुत्र पासक, बिमहाल और अश्वात यपलेत के यही पुत्र थे। शेमेर के पुत्र अही, रोहगाव, यहबा और राम। उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, यमना, शलेश और अमाल। सोपह के पुत्र सूह, हरनेपेर, शुआल, वेरी, इम्रा, बेसेर, होद, शम्मा, शिलसा, यत्रान और बेरा। येतेर के पुत्र यपुन्ने, यपुन्ने, पिस्पा और अरा। उल्ला के पुत्र आरह, हन्निएल और रिसिया। ये सब आशेर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े से बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे। ये जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गिने गए, इनकी गिनती 26,000 थी। 8 अध्याय पहले वचन से। बिन्यामिन की वंशावली पहले वचन से पढ़ेंगे। बिन्यामिन से उसका जेठा बेला, दूसरा अशबेल, तीसरा अहिया, चौथा नोहा, और पांचवा रापा उत्पन्न हुआ। बैला के पुत्र अद्दार, गेरा, अबीहूद, अबीशू, नाबान, अहो, गेरा, शपूपान और हुराम थे। एहूद के पुत्र ये हुए। गेबा के निवासियों के पुत्रों के घरानों में मुख्य पुरुष ये थे जिन्हें बंदी बनाकर मानहत को ले जाया गया था। और नामान, अहिया और गेरा, इन्हें भी बंदी बनाकर मानहत को ले जाया गया था। और उसने उज्जा और अहीलूद को जन्म दिया। शहरैम से हशीम और बारा नामक अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोवाब देश में लड़के उत्पन्न हुए। उसकी अपनी स्त्री होदेश से योवाब, सिब्बिया, मेशा, मलकाम, यूस, सोक्या और मिरमा उत्पन्न हुए। उसके ये पुत्र अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। और हुशिम से भी अबीतूब और एलपाल का जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र एबेर, मिशाम और शेमेर, इसी ने ओनो और गांवों समेत लोद को बसाया। अय्यालोन और गत के बिन्यामिन वंशी। फिर बरिया 13 वचन से आगे। फिर बरिया और शेमा जो अय्यालोन के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे और जिन्होंने गत के निवासियों को भगा दिया। और अहियो, शाशक, यर्मोत, जबद्या, अराद, एदेर, मिकायल, विस्पा, योहा जो बरिया के पुत्र थे। यरूशलेम के बिन्यामिन वंशी 17 वचन से आगे। जबद्या, मशुल्लाम, हिजकीर, हेबर, यशमरे, यजलिया, योबाब जो एलपाल के पुत्र थे। याकीम, जिक्री, जप्ती, एलियानाय, सिलतै, एलियल, अदाया, बराया और शिमरात जो शिमी के पुत्र थे। यशपान, यबेर, एलियल, अब्दोन, जिक्री, हनान, हनन्या, एलाम, अंतोतिया, यपदिया और पनुएल जो शासक के पुत्र थे। शमशरै, शहरिया, अतल्या, योरेशिया, अलिया और जिक्री जो यरोहाम के पुत्र थे। ये अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन और यरूशलेम के बिन्यामिन वंशी 29 वचन से आगे। गिबोन में गिबोन का पिता रहता था जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन था। फिर शूर, कीश, बाल, नादाब, गदोर, अहियो और जेकेर हुए। मिकोत से शीमा उत्पन्न हुआ और ये भी अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में रहते थे।
अपने भाइयों ही के साथ। राजा शाऊल की वंशावली 33 वचन से आगे। नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से शाऊल और शाऊल से योनातन। मलकीश अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुआ और योनातन का पुत्र मरीबाल हुआ और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, तारे और आहाज। आहाज से यहोअद्दा उत्पन्न हुआ और यहोअद्दा से ओलेमेत, अजमावेत और जिम्री से मूसा। मूसा से बिना उत्पन्न हुआ और इसका पुत्र रापा हुआ और रापा का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए जिनके ये नाम थे, अर्थात अजरिकाम, बोकरू, यशमायल, शरिया, ओबदिया और हनान। ये सब आसेल के पुत्र थे। उसके भाई एशेक के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा उलाम, दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत। उलाम के पुत्र शूरवीर और धनुर्धारी हुए और उनके बहुत बेटे पोते अर्थात 150 हुए। ये सब बिन्यामीन के वंश के थे। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हम अपने अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइमिंग में ये बाइबल रीडिंग प्लान को पढ़ना है। जब हम इसे पढ़ रहे होंगे और परमेश्वर का वचन ये अध्यायों में से हमारे साथ कुछ बातें करेगा, हमारे अंदर कुछ फैसले बनाने के लिए या फैसले बदलने के लिए या हमारा स्वभाव, आदतें नए बनाने के लिए, ऐसा सुधार करने के लिए कुछ कहता है ये वचन, तो हमने उसको लिख के रखना है, नोट्स बना के रखना है और उसके अनुसार हमने रोज़ के जीवन में वो वचनों को लागू करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम 2 साल के अंत में परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे। जब ऐसा करना है तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल का बर्तन बनाया हुआ, तैयार किया हुआ प्राप्त करेगा, वो हमें इस्तेमाल कर पाएगा। तो इसको होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह भी दिया है, उस अनुग्रह का हमने लाभ लेना है, निश्चित हमने इसका लाभ लेना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मार्क 14 चैप्टर 32 वर्स से 42 वर्स, नंबर्स 35 चैप्टर। 2 ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 32 वचन से 42 वचन। गिनती की पुस्तक 35 अध्याय।